رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائن۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے گلبرگہ ایس پی اور اعلیٰ حکام کی موجودگی میں اپنے کلیکٹر ہال میں 26 جنوری آنے والے ریپبلک ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے تحت منعقد کیا ضروری جائزہ اجلاس۔ گلبرگہ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک اور روڈ ایکسیڈنٹس میں اضافے کے چلتے روڈ سیفٹی مہم کو چلاتے ہوئے آج سے لاگو کیے جانے والے اہم قوانین کے بارے میں گلبرگہ شہر کی عوام کو دی گئی ضروری جانکاریاں۔ گلبرگہ ضلع بیدر کانٹریکٹر سچن پانچال سوسائڈ کیس میں راجو کپنور کے ساتھ کئی لوگوں کو سی آئی ڈی نے کیا گرفتار۔ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے بنگلور میں موجود سی ایم سدرامیا سے ملاقات کرتے ہوئے گلبرگہ شہر میں قائم کیے جا رہے حج بھون کے لیے فنڈز کو جاری کرنے کی دی درخواست۔ گلبرگہ ایس ڈی پی آئی لیڈر سید علیم الہی نے موجودہ کانگریس حکومت اور ایم ایل اے کنیز فاطمہ کو اپنے پرانے وعدے جلدی پورا کرنے کے لیے لگائی کڑے انداز میں گہار۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ شہر میں بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر 26 جنوری یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کو منانے کی تیاریاں زور و شوروں سے کی جا رہی ہے اور اسی کے پس منظر میں ان تیاریوں کے متعلق اہم اور ضروری جانکاریاں فراہم کرنے کے لیے گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم کی صدارت میں ڈی سی کلیکٹر ہال میں سبھی اعلیٰ حکام اور گلبرگہ ضلع ایس پی اڈروس نواسلو کے ساتھ مل کر ایک جائزہ اجلاس ضروری میٹنگ منعقد کی گئی اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ 26 جنوری 2025 کے دن انڈین ریپبلک ڈے کو پولیس گراؤنڈ میں بڑے ہی شان و شوکت اور شایان شان طریقے سے منایا جائے گا، جس کے چلتے 26 جنوری کی صبح 9 بجے منعقدہ اس تقریب کی تیاریاں آج سے ہی شروع کر دی جائیں۔ لہٰذا یہاں پر موجود تمام متعلقہ حکام نے اپنی اپنی تیاریوں کو بتاتے ہوئے اس میں پیش آنے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ اور اس کے حل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ شہر گلبرگہ میں بڑھتی ہوئی ٹریفک اور ایکسیڈنٹس پر قابو پانے کے لیے خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے، جس کے چلتے گلبرگہ ٹریفک پولیس گلبرگہ ضلع بھر میں جگہ جگہ سڑکوں پر اس مہم کو بخوبی انداز سے انجام دیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ گلبرگہ شہر کے تاور گرہ کے بالکل قریب واقع ٹریفک پولیس نے ایک بڑی ہی اہم کارروائی کو انجام دیا۔ اس علاقے میں روزانہ بڑھتی ہوئی ٹریفک اور سڑک پر گاڑیوں کا تیز رفتاری سے بھاگنا اکثر کئی حادثات کی بڑی وجہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں گہرائی سے سوچتے ہوئے گلبرگہ ٹریفک پولیس نے خاص آپریشن شروع کیا، جس کے تحت بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کو راستے پر روکا گیا اور ان گاڑیوں کے خلاف خصوصی کارروائی کی گئی۔ ساتھ ہی ایسے بغیر نمبر پلیٹ والے گاڑیوں کے اونرز پر چالان کاٹا گیا۔ ساتھ ہی ان اونرز کو ٹریفک رولز ریگولیشنز کو اچھے سے فالو کرنے کے اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بغیر ڈرائیونگ لائسنس اور بغیر ہیلمٹ کے اپنی گاڑیوں کو چلانے والوں کو بھی پکڑ کر چیک کیا گیا۔ ان پر بھی سخت چالان کاٹتے ہوئے کڑی ہدایت دی گئی۔ لہٰذا ایسے بہترین قدم کو دیکھتے ہوئے ہم گلبرگہ ٹریفک پولیس کی دل سے تعریف اور ستائش کرتے ہیں، کیونکہ یہ قدم عوام کی جانوں کی حفاظت کے پیش نظر بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بتا دیا جائے کہ سڑکوں پر ہائی سپیڈ سے گاڑیوں کو چلانا، بغیر ہیلمٹس کی گاڑیوں کو چلانا اور ٹریفک رولز کو فالو نہ کرنا، یہ بڑے ہی غلط کام اور غلطیاں ہوتی ہیں، جو کہ گاڑی چالک کے ساتھ ساتھ دوسرے سڑک پر موجود عوام کے لیے بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے میں گلبرگہ ٹریفک پولیس کا اس طرح کا بہترین قدم عوام کی جانوں کی حفاظت کرنے میں بڑا اثر انداز ثابت ہوگا، جس کے ذریعے سے یہاں پر ہو رہے روڈ ایکسیڈنٹس کی گنتی کو گھٹا کر کم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اسی کے ساتھ ہی گلبرگہ ٹریفک پولیس نے سبھی عوام جو بھی اپنی گاڑیوں کا روزانہ استعمال کرتے ہیں انہیں ہدایت دی کہ وہ اپنی گاڑیوں کو سڑکوں پر سپیڈ سے نہ چلائیں، سر پر گاڑی چلاتے وقت ہمیشہ ہیلمٹ پہنا کریں اور سیٹ بیلٹ لگائے رکھیں۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہوئے گاڑیوں کو چلائیں تاکہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانوں کی بھی حفاظت کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہی مہم کے چلتے کل رات کے وقت گلبرگہ ضلع کی مریانہ پولیس اسٹیشن میں بھی روڈ سیفٹی مہم کے حصے کے طور پر عوام کی گاڑیوں کو روک کر انہیں روڈ سیفٹی کے بارے میں بیداری پیدا کی گئی۔
साथ ही रात के वक्त सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों पर रेडियम लगाया गया ताकि दूर से आने वाली गाड़ियां सभी के नजरों में आ सके। इसी के साथ साथ चितापुर पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम ने भी रोड सेफ्टी मुहिम को बड़े ही अच्छे तरीके से अंजाम देते हुए चितापुर डिपो के अमले को सड़क की हिफाजत के तहत रहनुमा खतूत पेश करते हुए रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के अमल आवरी करने की उन्हें हिदायत दी। गुलबर्गा जिला बीदर कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल सुसाइड केस दिन ब दिन बड़ा तूल पकड़ते जा रहा है, जिसके चलते राजू कपनूर के साथ 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, जैसे कि पहले भी नाजरीन को बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने के लिए इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था। तो सीबीआई ने इस केस की छानबीन शुरू कर दी है और इसी दौरान सचिन पांचाल के लिखे हुए सुसाइड नोट में मेंशन राजू कपनूर और उसके कुछ साथियों को 6 जनवरी के दिन एक नोटिस जारी किया गया कि जल्द ही वो लोग सीआईडी के सामने हाजिर हो जाएं। लिहाजा इसी नोटिस के चलते राजू कपनूर और उसके साथियों ने बीदर में मौजूद सीआईडी टीम के सामने अपनी हाजिरी लगाई। लिहाजा कुछ देर इन लोगों से पूछताछ की गई और फिर सचिन पांचाल सुसाइड केस में इन तमाम लोगों को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया, जिसके बाद इन लोगों को चेकअप करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ले जाया गया। बता दें कि राजू कपनूर के साथ उनके साथी नंद कुमार, गोरखनाथ, आर के पाटिल और सतीश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लिहाजा इन लोगों को मेडिकल चेकअप होने के बाद इन तमाम लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल सुसाइड केस को खुले तौर पर वजाहत करते हुए सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जाएगी। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा ने गुलबर्गा शहर की तरक्की के लिए बड़े ही अहम कदम को उठाते हुए कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात की और यहां पर मौजूद गुलबर्गा हज भवन की तकमील के लिए ज़ेरे इल्तिवा फंड्स को फौरी तौर पर उन्हें जारी करने की दरख्वास्त की। हाँ, कनीज फातिमा, केपीसीसी मेंबर और फराजुल इस्लाम ने बैंगलोर में मौजूद सिद्धरमैया साहब से मुलाकात करते हुए गुलबर्गा शहर के तरक्की से मुतालिक अहम मसले मसाइल पर तबादला ख्याल किया। साथ ही यहां पर बनाए जा रहे हज भवन की तामीर के लिए जरूरी फंड्स को जल्दी जारी करने की उन्होंने वजीर आला सिद्धरमैया से गुजारिश की। साथ ही इस मुलाकात का मकसद ये रहा कि अपने खित्ते के अहम जरूरियात को सीएम साहब के सामने उजागर किया जाए और साल 2025 के बजट में कुछ अहम निकात को भी शामिल किया जाए। गुलबर्गा हज भवन जो कि अपने शहर और कम्युनिटी के लिए बहुत अहमियत रखता है और इस अहम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए ज़ेर इल्तिवा फंड्स को फौरी तौर पर जारी करने पर भी कनीज फातिमा ने जोर दिया। मजीद एमएलए साहिबा ने यहाँ पर मौजूद आइमाए दीन मुअज्जिन हजरात के एजाज में इजाफा करने की भी सीएम सिद्धरमैया से गुजारिश की। जी हाँ, उनकी वक्फ कुर्दा शिराकत के इतराफ में उनके माहाना एजाजिया में बिलतरतीब 10,000 से 12,000 तक के इजाफे की उन्होंने वकालत की। साथ ही गुलबर्गा की विरसे को जिंदा रखने के तहत एक तारीखी सयाहती मरकज के तौर पर शहर की बेपनाह सलाहियत पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि सयाहों को रागिब करने और मुकामी मईशत को फरोग देने के लिए तारीखी मुकामात की खूबसूरती, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल पर भी जोर दिया जाए। साथ ही वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के तहत कम्युनिटी के फायदे के लिए वक्फ अराजी की हिफाजत और हिकमत अमली से तरक्की के लिए खातिर ख्वाह फंडिंग की जरूरत पर भी उन्होंने यहाँ रोशनी डाली। साथ ही कनीज फातिमा ने जदीद तरीन एपीएमसी के क़याम के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर 200 एकड़ अराजी हासिल करने की तजवीज़ और ज़रई तिजारत और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए साल 2025 के बजट में इसकी तामीर के लिए ग्रांट की भी सीएम सिद्धरमैया से गुजारिश की। इस मौके पर गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी जनरल सेक्रेटरी और एक्टिव मेंबर सैयद अली मिलाही ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा को अपने पुराने वादे और कामों को याद दिलाते हुए कड़े अंदाज में कई सारे बातों को मीडिया के जरिए से हम सभी के सामने पेश किया। सैयद अली मिलाही ने कहा कि कुछ दिन पहले गुलबर्गा रिंग रोड पर कनीज फातिमा ने डीसी साहिबा और दीगर हकाम एनएचएआई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ रिंग रोड पर विजिट करते हुए अवाम को ये तयखुन दिया था कि यहाँ पर हो रहे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए फौरी तौर पर रिंग रोड सर्विस रोड पर काम शुरू किया जाएगा और 15 जनवरी तक इन कामों को जरूर मुकम्मल किया जाएगा, जो काम आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और ये वक्त और तारीख बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो क्या 3 से 4 दिन के अंदर ये काम मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन जीतने पर मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिए जाने की भी इन्होंने बात कही थी, जिस पर भी आज तक कोई काम नहीं किया गया। मजीद ऐसी कई सारी बातों को याद दिलाते हुए सैयद अली मिलाही ने कनीज फातिमा, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को मीडिया के जरिए से इन तमाम रुके हुए कामों को जल्दी अंजाम देने का मुतालबा किया।
मरहूम शौहर डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब का जो ख्वाब था, ये जो रिंग रोड की जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक के वजह से वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाना चाहिए बोलकर एक प्रपोजल था, वो तो एक डस्टबिन में चले गया है। अपने शौहर के ख्वाब को तो पूरा करना चाहिए। वो फ्लाईओवर बनाकर डॉक्टर मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के नाम से एक फ्लाईओवर तो बनाने की डिमांड सरकार से करनी चाहिए थी। जो आपके इशू पर मैं बात करूंगी और उस मसले को हल करने की कोशिश करूंगी। अभी तक उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं हुई है। इन्होंने खुद कहा था कि अलंद के केसेस में, हुबड़ी के केसेस में, केजी हल्ली और डीजी हल्ली के केसेस में केसेस डालकर जो गरीब लोगों को, मुसलमानों को, औरतों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो आप मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को दिए हैं, वो मेमोरेंडम पब्लिकली आप शो करना चाहिए। क्या आप मेमोरेंडम दिए हैं? आप सोशल मीडिया पे 5 पॉइंट्स तो डाले हैं, लेकिन जो आप मेमोरेंडम दिए हैं वो पब्लिक को मालूम होना चाहिए क्या दिए हैं। इसके अलावा जो वादे करे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए मोहतरमा कनीज फातिमा जी को। गुलबर्गा शहर में पिछले कुछ सालों में रोड एक्सीडेंट्स में लगातार इजाफा और बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते यहां पर ट्रैफिक रूल्स कवानीन पर स्ट्रिक्टली अमलावरी करने के बारे में आवाम को कई बार हिदायत दी गई और कई बार अलग अलग तरह से रोड सेफ्टी मुहिम को भी चलाया गया, लेकिन यहां पर रोड एक्सीडेंट्स थमने रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इन रोड एक्सीडेंट्स के बढ़ने में 3 से 4 अहम वजूहात, रीजंस का सबसे अहम रोल रहा है, जैसे कि ड्रंक एंड ड्राइव करना, स्पीड बड़ी तेजी के साथ गाड़ियों का रोड पर दौड़ाना, माइनर छोटे छोटे बच्चों का रोड रास्ते गलियों में बेतहाशा गाड़ियों, टू व्हीलर, स्कूटी को चलाना और ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस, ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी न करना, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना। इन्हीं अहम वजूहात और रीजंस पर रोशनी डालते हुए आज गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा IPS ने अपने पुलिस हॉल में माइनर बच्चों की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जहां पर इन 18 साल से कम उम्र के माइनर बच्चों को पकड़कर उन पर छोटे मोटे फाइन, जुर्माना आयद करते हुए कड़ी वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। और इन माइनर बच्चों के साथ सभी अवाम, बच्चों के पेरेंट्स को जानकारी दी गई कि आज के बाद गुलबर्गा शहर में अगर किसी रोड रास्तों पर या गलियों में कोई भी माइनर 18 साल के कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाते हुए देखा गया तो फौरी उन बच्चों को पकड़कर उन पर 25,000 रुपये का फाइन मारा जाएगा और उनकी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। लिहाजा ऐसे में पेरेंट्स, वालिदैन को चाहिए कि वो अपने कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने ना दें, वरना फिर अपने बच्चों पर आयद किए गए 25,000 फाइन को पेरेंट्स को लाजमी अदा करना होगा, जिसके चलते वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखें। साथ ही यहां पर कई सारे ड्रंक एंड ड्राइव केसेस में शराबियों को पकड़ते हुए उनकी गाड़ियों को सीज किया गया और उन पर एक्शन लिया गया। साथ ही स्पीड बड़ी तेजी के साथ गाड़ी चलाने वाले, ड्रंक एंड ड्राइव करने वाले लोगों की गाड़ियों को भी सीज करते हुए उन पर भारी जुर्माना आयद करते हुए उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात भी यहां पर कही गई। और गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा IPS ने आवाम को यहां पर यह भी बताया कि आज के बाद जो भी आवाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करते हुए पाई गई तो उन पर भी जुर्माना आयद करते हुए सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में अब आवाम को होशियारी के साथ गाड़ी चलाने और ट्रैफिक रूल्स पर अमल पैरा होने की बेहद जरूरत है। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।